Yes, today we will do here exercise number 5.1 and the sum number first we have done before. Statement sum and the second sum. Now the second one. Write first four terms of AP when the first term A and the common difference D are given as follows. Now we have here in this sum the first term is given to you and the common difference also given to you. Now we want to calculate here the first four terms of AP. AP की हमें फर्स्ट फोर टर्म्स कैलकुलेट करना है एंड इससे पहले हमने जो अभी प्रोसेस सीख लिया था, जनरल फॉर्मेशन लिखना सीख लिया था AP का, देन हाउ टू राइट देम, किस तरीके से आपने वो लिखा था. बिकॉज AP defined by the terms A1, A2 up to AN, nth term, and the general form of this A plus D, A plus 2D up to A plus n minus 1 into D. ये जनरल फॉर्मेशन था. In this we have first term A and the second term. How to calculate this? The second term, in first term you have to add here the common difference. कि common difference आप वहाँ पर add कर देते हैं first term में और आपको second term मिल जाता है. So how to write them? A1 equal to A, A2 equal to A plus D, A3 equal to A plus 2D. In the first term, before term, जो भी इसका before term है, in that you have to add there the D, common difference आप add कर रहे हैं, so we have there A plus 2D. Okay, जो भी preceding आपका term है, in that you have to add there the common difference for calculating there the next one. Okay, तो वही प्रोसेस हमने यहाँ पर यूज़ किया है और उसे यूज़ करते हुए हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं. Then we have here the nth term an equal to A plus n minus 1 into D. So in the second one we have there the first term and the common difference is given to you, then easily you can calculate here the other terms of the AP की आप AP की other term calculate कर सकते हैं. क्या है वो? In this, the first part of this second sum, we have there A equal to 10 and D also equal to 10. Now, because the first term is given to you, so we want to calculate here the A2. A1 आपको given है, A2 आपको calculate करना है. How many terms we want here? The 4 terms, A2, A3, A4, A5 up to A5. So A plus D, it means 10 plus 10, that is equal to 20. Then A3, A plus 2D, we have there the 10 first term and this value also 10. Put in this equation that values and calculate yourself that A3, A4 and A5. Now whenever we want to write here the AP, 10, 20, 30, because we want here the other 4 terms. So 1, 2, 3 and 4. But you have to calculate yourself first here the value of A4 from this and A5 from this, because you know the value of A and D. Okay, ये इसका सेकेंड सम था.
किस तरीके से हमने इसके फॉर्मूलेस यूज़ किए हैं, अपनी जनरल फॉर्मेशन हमने यूज़ किया है फॉर कैलकुलेटिंग द नेक्स्ट टर्म्स। बहुत इजी सम है, ठीक है। तो कई बार आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है 1 मार्किंग में कि टर्म्स किस तरीके से आपको कोई दे दिया जाए कि nth टर्म में सेकेंड टर्म कैलकुलेट करने के लिए, फोर्थ टर्म कैलकुलेट करने के लिए, तो आप इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, in this you have there the values of a or d, in the negative values also, in the negative mark also, in that यदि आपका नेगेटिव है वो वैल्यू a या d का, तो आप वहाँ पर उसी साइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पुटिंग देंगे, कैलकुलेशन करेंगे, कहीं पर मिस्टेक नहीं करना है, छोटी छोटी कैलकुलेशन है इसलिए। तो एक सम और कर देते हैं, इन दैट वी हैव देयर द बोथ वैल्यूज इन द नेगेटिव साइन एंड वी हैव देयर द डेसिमल आल्सो। That is the fifth part of second sum. A equal to minus 1.25 and D equal to minus 0.25. Now the format is same कि आपको वही फॉर्मेट लेना है, वही फॉर्मूलाज आपको यूज करना है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी द a1 वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है वो तो हमें गिवन है ही है। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट हियर द a2, हाउ टू कैलकुलेट दिस, a plus d, पुट हियर द वैल्यू फॉर दिस minus 1.25 plus, first put here the sign of plus because in my formula I have there the plus sign, तो पहले प्लस साइन पुट कीजिए, देन वैल्यू ऑफ d minus 0.25 minus 1.25. Now the sign are multiplied here, so plus minus minus multiplied हो रहे हैं, इसलिए हमने कहा है प्लस माइनस माइनस 0.25 because the both having the same sign. नेगेटिव आपका फर्स्ट टर्म यहाँ पर भी है और सेकंड में भी है आपका नेगेटिव साइन, देन दे आर एडेड हियर। तब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पर because in the both term we have there the negative sign, so in answer also you have to put there the first negative sign। ठीक है, देखिए दोनों में क्लियर करके चलिए। बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत बार बच्चों को 10th स्टैंडर्ड तक आ जाते हैं लेकिन कंफ्यूजन नहीं जाता है। कंफ्यूजन केवल इतना होता है कि whenever the sign are multiplied here then we have to say there plus minus minus, but whenever we have here this type of terms they are having there the negative sign, so in that we have to add that, okay, then put there the negative sign. If we have there the different sign, so we want to do there the subtraction between them, okay। अब यहाँ जल्दी से ऐड कर दीजिए, this one is 10, this one is 5 and this one is 1। तो लास्ट आंसर आपके पास क्या है A2 के लिए, दैट इज माइनस 1.50, ओके। सेम प्रोसेस आपका A3 के लिए रहेगा, A plus 2D, put there the values, ठीक है, A4 and A5, A plus 3D, A plus 4D, and at last because we want to calculate the 4 terms of the AP, so you have to write here जो आपका फर्स्ट टर्म है दैट इज माइनस 1.25, अभी हमने सेकेंड टर्म कैलकुलेट किया है माइनस दिस वन, एंड कैलकुलेट हियर दीज वैल्यूज आल्सो एंड पुट देयर द वैल्यूज इन दिस AP, कि यहाँ पर आप लास्ट में वो AP लिखकर बताएंगे ही, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड सम था, बहुत इजी बेस में है, केवल फॉर्मूलेज यूज़ करना है। जो 5th चैप्टर है वो फॉर्मूला बेस्ड ही है। फॉर्मूला यदि आपको पता है तो हमें केवल प्रोसेस सीखना है कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ओके। नेक्स्ट है आपका थर्ड सम करवा रहे हैं आपको। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस।
भाई अभी आपको क्या किया गया यहाँ पर इन द सेकेंड वन वी हैव देयर द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस एंड कैलकुलेट देयर द एपी। नाउ इन दिस थर्ड वन वी हैव देयर द एपी। एपी आपको गिवन में आया है। अकॉर्डिंग टू द एपी यू विल सेलेक्ट देयर द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। उसे आपको सेलेक्ट करके केवल लिखना ही है। एक कोई भी यहाँ से सम ले रहे हैं हम थर्ड में से, ठीक है, एनी पार्ट फर्स्ट ले लेते हैं, सिंपल है आपका। ये आपका एपी गिवन में है। यहाँ से आपको ए वैल्यू बताना है और डी वैल्यू सेलेक्ट करना है। हाउ टू राइट हियर द ए फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी दैट इज 3, सो वी हैव टू राइट हियर द 3। हाउ टू कैलकुलेट द डी कॉमन डिफरेंस। आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जो भी सक्सीडिंग आपकी वैल्यू होती है उसमें से जो भी उसका प्रीसीडिंग वैल्यू होगा, जो भी प्रीसीडिंग टर्म होगा, वो आप क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करवाते हैं। तो हम किस टाइप से यहाँ पर टर्म्स शो करते हैं, A1, A2, A3, A4 यही करते हैं हम। तो यहाँ पर यदि मुझे कॉमन डिफरेंस शो करना है, सो वी वांट टू राइट हियर A2 माइनस A1, इट मीन्स 1 माइनस 3, दैट वैल्यू इज -2। कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, पॉसिबल है कि 0 ही हो, ठीक है। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, अरे कंफ्यूज क्या, अरे ये तो नेगेटिव आ गया, नहीं। डी आपका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव, पॉजिटिव एंड द 0, इनमें से कोई भी वैल्यू वहाँ पर हो सकती है, ओके, इट कैन। थर्ड सम क्लियर हो गया भाई। यहाँ पर आपको केवल कॉमन डिफरेंस और ए कैलकुलेट करके बताना है। फोर्थ वन, नाउ इन फोर्थ वन वी हैव देयर विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। अब सबसे पहले जो पार्ट्स हैं आपके पास, उसमें से हर एक पार्ट को पहले कैलकुलेट करके ये देखना है क्या ये एपी है या नहीं है, चेक करना है पहले, ओके। इफ दे फॉर्म एन एपी, चेकिंग के बाद यदि वो एपी है, ठीक है, तो क्या होगा, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो उस एपी का आपको कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करके बताना है एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स कैलकुलेट करनी है, जैसे कि अभी हमने सेकंड सम में किया था। इन दैट वी हैव देयर द ए एंड डी एंड वी हैव टू कैलकुलेट देयर द, क्या कैलकुलेट किया था हमने, नेक्स्ट टर्म्स कैलकुलेट की थी। तो सेम थिंग इज हियर कि जो भी हमारा एपी यहाँ पर चेक करने के बाद सेलेक्ट होता है वो एपी है वहाँ पर, ठीक है। वो सीरीज यदि आपकी एपी आती है तो हम वहाँ पर क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, वी वांट देयर द कॉमन डिफरेंस, की कॉमन डिफरेंस वहाँ पर चाहिए होगा और साथ में क्या चाहिए होगा, फर्स्ट टर्म चाहिए होगा, ठीक है। तो वहाँ हम इजीली जो भी उसकी नेक्स्ट टर्म्स हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक सम हम यहाँ से ले रहे हैं और उसका पूरा चेकिंग प्रोसेस भी मैं आपको समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, और साथ में यदि उसमें एपी है तो उसकी नेक्स्ट टर्म्स किस तरीके से कैलकुलेट की जा रही हैं वो भी एक्सप्लेन करें। तो यहाँ फोर्थ वन है, फर्स्ट सम ही ले रहे हैं हम, इसका फर्स्ट पार्ट ही ले रहे हैं। इसमें हर एक टाइप के सम है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू से रिलेटेड हैं, कुछ फ्रैक्शन से हैं, कुछ डेसिमल से हैं, कुछ रूट से हैं, कुछ वेरिएबल से रिलेटेड है। उनमें आपको एपी चेक करना है। फर्स्ट 2, 4, 8 एंड 16, ओके। अब एपी कैसे चेक किया जाता है कि भाई ये एपी है या नहीं है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, किस तरीके से हम चेकिंग वर्क करते हैं। सो इन दैट वी हैव टू कैलकुलेट देयर द डी वैल्यू, कि हम यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस हम कहते हैं वो कॉमन डिफरेंस हम क्यों कहते हैं, वाई, की रीजन क्या है कि बिटवीन द टर्म्स व्हेनेवर वी आर कैलकुलेटिंग देयर द डिफरेंस,
जब भी हम टर्म्स के बिटवीन डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज ऑलवेज सेम, कि वो हमेशा कैसा होना चाहिए, सेम आना चाहिए। और यदि वो सेम आता है तो हम ये कहेंगे कि ये एपी है। ये जो भी आपको सीरीज दी गई है वो एपी शो कर रहा है। और यदि वहां पर जो कॉमन आपका डिफरेंस जो आप कहते हैं, जो डी वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं, यदि वो इक्वल नहीं आता है बिटवीन द टर्म्स, तो हम वहां पर क्या कहेंगे, दिस इज नॉट एन एपी। तो सबसे पहले हमारा चेकिंग वर्क रहेगा, और चेकिंग वर्क के लिए हम ये नहीं है कि फर्स्ट टू टर्म से हमने कॉमन डिफरेंस देखना चाहा कि भाई ये तो होगा, नहीं। हम इसके लिए कितना टर्म कैलकुलेट करेंगे, बिटवीन दिस एंड बिटवीन दिस। ओके, तो कैलकुलेट करने के लिए हमने जो फर्स्ट ऑप्ट किया है वो टर्म्स क्या लिए हैं, 2 and 4। और उसके लिए मैं यहाँ पर इस d को सेपरेटली नेम देना चाहती हूँ, तो हमने दिया है d1, a2 minus a1, because we have here the 4 terms. So 4 minus 2, that is equal to 2. Now the next one, d2 between this, that is a3 minus a2, and 8 minus 4, that is equal to 4. Okay, now the d3, a4 minus a3, and this value is 16 minus 8, that is equal to 8. अब देखिए आपको खुद को शो हो रहा है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या, कि भाई d1, d2, d3 जितने भी हमने डिफरेंसेस बिटवीन द टर्म्स कैलकुलेट किए हैं वो इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो हम लास्ट में क्या दे देंगे यहाँ पर, कि d1 नॉट इक्वल टू d2 नॉट इक्वल टू d3। नाउ वी हैव टू राइट योर द स्टेटमेंट, क्योंकि चेकिंग करना है, फर्स्ट आपको वही वर्क करना था। तो हम यहाँ पर चेकिंग के बाद स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं, दिस इज नॉट एन एपी। सिंपल आपको केवल लैंग्वेज यहाँ पर ये लिखकर बताना है। उसका रीजन भी हमने दे दिया, क्यों नहीं शो कर रहा है वो एपी, बिकॉज वी हैव देयर द डिफरेंस बिटवीन द टर्म दैट इज नॉट इक्वल, कि वो इक्वल नहीं आ रहा। तो इस टाइप से आपको ये चेकिंग वर्क करना है। ओके, तो कोई और सम भी हम ले लेते हैं जिसमें कि आपको नेक्स्ट टर्म्स कैलकुलेट करना होगा और वो एपी शो कर रहा होगा। फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस, 3 plus root 2, 3 plus 2 root 2, 3 plus 3 root 2। 4 टर्म्स की हमें यहाँ पर सीरीज दी गई है, और इसके अकॉर्डिंग पहले हमें सेलेक्ट करना है दैट इज एपी और नॉट। फॉर्मेट वही रहेगा जो अभी आपको बताया है। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट देयर द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स। सो d1 a2 minus a1, 3 plus root 2 minus 3। इजी कैलकुलेशन है, कैंसिल किया आपने, 3 minus 3 0 होता है, बट हम 0 ना लिखकर उसे कैंसिल इस तरीके से कर देते हैं। नाउ द रिजल्ट इज रूट 2। नाउ द सेकेंड वन, d2 a3 minus a2, 3 plus 2 root 2 minus 3 plus root 2। ब्रैकेट पुट कीजिए जिससे कि आपकी जो साइन मिस्टेक है वो ना हो, क्योंकि आपको ये ध्यान रहेगा, माइंड में ये रहेगा क्या, कि भाई अब हमें ब्रैकेट ओपन करना है, बिकॉज वी हैव देयर द नेगेटिव साइन, एंड व्हेनेवर यू हैव टू ओपन दैट ब्रैकेट इट मीन्स द साइन आर चेंज्ड। साइन अपने आप ही क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन। जो भी साइन होगा प्लस होगा तो माइनस में चेंज होगा, और माइनस है तो
प्लस में चेंज होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले बच्चों को सिखा दिया जाता है, बट क्योंकि वापस से ये चीज़ें कैलकुलेशन में आती हैं और मिस्टेक होती हैं यहाँ पर, तो इसलिए आपको ये चीज़ें रिमाइंड करवाई जा रही हैं कि भाई आप मिस्टेक मत करना, है ना। 3 + 2√2 -3 -√2, इजली आपने ये कैंसिल कर दिया। अब भाई 2√2 -√2 है, ठीक है, तो इसका सब्ट्रैक्शन हम क्या लिखें, तो उससे पहले एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि आपने वेरिएबल यूज करते हो ना कि 2x - x क्या लिखते हो, इसे क्या बोलते हो आप, क्या आएगा रिजल्ट, उसका रिजल्ट आप बताते हैं x। तो सिंपल फॉर्मेट है कि यहाँ वेरिएबल सेम थे, इसलिए आपने यहाँ पर बिटवीन द टर्म्स क्या किया है, सब्ट्रैक्शन आप कर सके हैं। ठीक है, सेम थिंग इज हियर कि यहाँ पर जो भी आपको टर्म्स हैं, वी हैव गिवन द टू टर्म्स 2√2 एंड √2। इन दिस √2 की दोनों ही टर्म्स हैं, so we have to do there the subtraction or addition between them according to the sign, कि हम यहाँ पर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, जो भी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर साइन है। यहाँ जो आपके पास प्रोसेस में आना है, कैलकुलेट होना है, वो क्या है, सब्ट्रैक्शन है। और सब्ट्रैक्शन में हमारे पास √2 की यहाँ पर टर्म्स हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर x का रिप्लेसमेंट किससे हो गया, √2 से हो गया है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आफ्टर सब्ट्रैक्शन √2, तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, √2। ओके, ठीक है, ये 2 टाइम्स था, ये 1 टाइम था, 2 - 1 क्या करते हो, 1 ही लिखते हो, बट यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 मल्टीप्लाई विद √2, तो क्या होगा, √2 ही आएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ आपको नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, D3। तो D3 के लिए जो टर्म है आपके पास वो है 3 + 3√2। ओके, 3 डायरेक्ट लिख दिया है मैंने, बट यू हैव टू राइट हियर द फॉर्मूला ऑल्सो। भाई ये आप D3 कैलकुलेट कर रहे हैं, 4 टर्म आपको गिवन में है, तो A4 - A3 आप लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर पुटिंग कर दीजिए। ओके, अब क्या करना है हमें, पहले ब्रैकेट ओपन कर दें, साइन चेंज हो गए, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या है, 3 - 2, तो क्या आना चाहिए, रिजल्ट 1 ही आएगा, बट वी हैव देयर विद देम √2 से मल्टीप्लाई है, तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, √2। ओके, यदि किसी को डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा कि भाई ये √2 कैसे हो रहा है कैलकुलेट, तो हम उसे इजी लैंग्वेज में ये कह देते हैं, सिंपल तो आता है ना भाई आपको, 3 - 2 क्या होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पर इस 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई है, √2, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, √2, तो 1 मल्टीप्लाई विद √2 दैट इज ऑल्सो √2, सेम ही नंबर आता है। अब हमने जो भी यहाँ पर अभी डिफरेंसेस कैलकुलेट किए हैं, उन्हें जल्दी से लिख देते हैं और उनकी वैल्यूज देख लेते हैं। भाई क्या आ रहा है, D1 √2 है, D2 √2 है और D3 भी क्या है, √2 है। इट मीन्स वी हैव हियर D1 = D2 = D3 = D, दैट इज इक्वल टू √2, कि जो यहाँ पर डिफरेंसेस हमने कैलकुलेट किए वो सभी में सेम आ रहे हैं, और उस सेम डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर द AP, दैट इज द D, केवल D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये D इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, √2 है। और यहाँ पर जब डिफरेंस इक्वल होते हैं तो हम चेकिंग के लिए लास्ट स्टेटमेंट क्या देंगे, लास्ट स्टेटमेंट हम ये देना चाहते हैं कि ये जो सीरीज थी दिस इज एन AP, कि ये क्या शो कर रहा है, AP शो कर रहा है, तो आप ये स्टेटमेंट यहाँ पर देंगे, दिस इज एन AP।
देयरफॉर का साइन लगा दीजिए कि ये रीजन आपने दे दिया है, इसलिए आपका ये क्या है, एपी है। देयरफॉर इसलिए ये क्या शो कर रहा है, एपी शो कर रहा है। अब हमने कहा था यदि एपी आता है चेकिंग में तो हमें नेक्स्ट 4 टर्म्स या नेक्स्ट 3 टर्म्स यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। अब कैलकुलेट करनी है तो भाई कैसे कैलकुलेट करोगे, बिकॉज ऑलरेडी इन दिस सम वी हैव देयर जो गिवन आपकी टर्म्स थी, वो गिवन टर्म्स आपके पास क्या है, दैट इज A1, A2, A3, A4, ये गिवन है। ठीक है, तो इससे एक्स्ट्रा चाहिए हमें, इनमें से नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए। अब एक्स्ट्रा यदि 3 टर्म्स, हमें मोर 3 टर्म्स चाहिए तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, A5, A6 एंड A7। यदि 4 होती तो 8। ओके, तो एक कैलकुलेट करके बता देते हैं आपको A5, क्योंकि इससे पहले हमने सेम मेथड का सम कर लिया है। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है, A5 दैट इज इक्वल टू A प्लस 4D। सेम मेथड का सम कर लिया था, टर्म्स कैलकुलेट करनी सीख ली थी। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, जो फर्स्ट टर्म था दैट वैल्यू इज 3 and we have there the d value is √2, put there the √2 because in this format we have there the different terms कि भाई यहाँ पर तो 3 है, यहाँ √2 के साथ है, तो we can't add them, कि इन्हें हम ऐड नहीं कर सकते with this। हाँ, तब ऐड कर सकते हैं, तब पॉसिबिलिटी है, कब, कि whenever we are calculating the √2 value in the decimal, कि यदि मैं इस √2 की डेसिमल वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें हम, देन वी हैव टू डू देयर द एडिशन बिटवीन देम, तब हम उसे ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ हम उसमें एडिशन नहीं कर सकते। कई बार बच्चे कर देते हैं, जैसे वेरिएबल के साथ भी लिख देते हैं ना कि 3x प्लस 2 है, अब वो क्या करेंगे, दोनों का ऐड कर देंगे, 5x लिख देंगे। भाई नहीं ना, दोनों डिफरेंट हो गए, एक के साथ वेरिएबल है और एक क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ओके, तो इसलिए एक अलजेब्रिक हो गया, एक कांस्टेंट टर्म हो गया, दे कांट ऐड देयर। ओके, तो यहाँ ये आपका क्या हो गया, A5 हो गया। इसी तरीके से आप A6 कैलकुलेट करेंगे, A प्लस 5D, A7 कैलकुलेट करेंगे, A प्लस 6D, इस तरीके से। और केवल आपको यहाँ पर फर्स्ट टर्म और D वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर 3 मोर टर्म्स के लिए कहा गया है, तो हमने इस तरीके से ये मोर टर्म्स कैलकुलेट किए हैं। ओके, बहुत इजी फॉर्मेट है। यदि आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, यदि आपने इसे समझ लिया और अपने आप इसे करके देखेंगे, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि जब तक आप मैथ में अपने हाथों से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती है। देखने से क्लियर नहीं होती है, वह करने से होगी। ओके, लिखने से होगी। तो इस टाइप के इसमें सम है, 4 सम जो आपका है, इसमें आपको 15 पार्ट आपको यहाँ पर गिवन में आए हैं। फॉर्मेट थोड़े से डिफरेंट भी हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम इन्हें सीख रहे हैं।